Hi guys, my name is Vandita Vashisht and welcome back to Pricebaba. Today I have the OPPO Reno 6 with me. Second smartphone in the OPPO Reno 6 series. इससे पहले OPPO Reno 6 Pro का कैमरा रिव्यू मैं कर चुकी हूँ. In case आपने नहीं देखा है तो do check it out. आज हम करने वाले OPPO Reno 6 का कैमरा रिव्यू डालेंगे इसकी सारे कैमरा स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर. Very interesting camera features. So without further ado, let's start the video. Before starting the video, let's have a look at the camera specifications of the OPPO Reno 6. First of all, we're going to look at the standard wide angle and the zoom shots from the OPPO Reno 6. स्टैंडर्ड शॉट एक वेल बैलेंस शॉट है जहाँ पर आपको अच्छी डिटेल्स देखने को मिलेंगी एंड गुड डायनामिक रेंज. कैमरा मैनेजेस टू कंट्रोल हार्श सनलाइट एंड आपको कोई भी एरिया नहीं देखने को मिलेगा जो कि ओवर एक्सपोज्ड है. कलर्स आर नेचुरल एंड क्लोजर टू द एक्चुअल सिनेरियो. वाइड एंगल शॉट की बात करें तो इट इज अ नॉच डाउन इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेंसर्स इन द स्टैंडर्ड मोड एंड द वाइड एंगल मोड. कलर टेम्परेचर यहाँ पर इज स्लाइटली लोअर एज कम्पेयर टू अदर सैम्पल्स. It covers a lot more area than a regular shot and has good dynamic range. 2x zoom shot की बात करें तो it is almost as good as a regular shot. अच्छी details दी गई हैं यहाँ पर and the colors are vivid. 5x and 10x zoom shot are usable. इतना zoom करने पर you'll lose details of course and your shot will get very pixelated. Oh yes, it's time for selfies now. OPPO Reno 6 से लिए गए selfie shots turned out decent. ये शॉट लिटरली ब्लाइंडिंग सनलाइट में लिए गए थे बट इट मैनेजेस द एक्सेसिव सनलाइट अच्छे से एंड सेल्फी बर्नट आउट नहीं लग रही है. फेशियल डिटेल्स आर गुड. कलर्स आर नॉट सैचुरेटेड, दे आर क्लोजर टू द एक्चुअल सिनेरियो बट आई वुड से कुछ शॉट्स में स्लाइटली फेडेड भी लग रहे हैं. Of course, आप blemish free selfies भी ले पाएंगे thanks to the beauty mode. Now it's time to look at the selfie and rear portrait shots. Rear portrait shots की बात करें तो they are very good when clicked in adequate lighting conditions. Exposure and edge detection is pretty good. However, अगर लाइट थोड़ी कम हो रही है ढलते सूरज के टाइम लो लाइट कंडीशंस में अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो they falter a bit. Edge detection and details वहाँ पर become average. Selfie portrait shots were equally good and skin tone detection यहाँ पर काफी अच्छी है. Edge detection is good too. Background blur is decent. यहाँ पर scope for improvement है. You also can use the beauty mode while clicking selfie portrait shots. It's time to now look at the close-up and macro shots. Close-up shot की बात करें तो it is average. Details और अच्छी हो सकती थी यहाँ पर. Edges आप देखेंगे अगर zoom करके तो in some places seem to be merging with the background. हालांकि color scheme is really good closer to the actual scenario. Macro shot is also average. Edges are still better defined as compared to the close-up shot, but details here are average. Now let's have a look at the extra HD shots. अब extra HD shot की बात करें तो it is like the dedicated sensor जो आपको बाकी phones में देखने को मिलता है. You get some really amazing details when you turn this mode on. आप zoom कर सकते हैं किसी भी corner में frame के and you see very crisp details, very good dynamic range and exposure. आप साथ ही साथ 2x zoom shot भी ले सकते हैं इस मोड में and it is still pretty good. However, 5x zoom shot will give you an oil painting-ish effect. This one I don't think is usable. चलिए अब नजर डालते हैं at the AI color portrait shots and the AI scene enhancement shots. AI color portrait mode is another funky feature. This feature is slightly different जो आपके regular portrait mode होते हैं उनसे. यहाँ पर इट मेंटेन्स जो सब्जेक्ट के कलर्स बट ये ब्लर कर देता है और डीसैचुरेट कर देता है बैकग्राउंड कलर्स को. रियर कैमरा से लिए गए कलर पोर्ट्रेट शॉट्स आर फन टू क्लिक स्पेशली इफ यू हैव अ बिजी बैकग्राउंड. एज डिटेक्शन इज प्रीटी गुड, नियर परफेक्ट. फ्रंट कैमरा से भी आप क्लिक कर सकते हैं सम क्यूट सैम्पल्स इन द AI कलर पोर्ट्रेट मोड. यू गेट मॉडेस्ट बैकग्राउंड ब्लर एंड द सेम डीसैचुरेटेड इफेक्ट. एज डिटेक्शन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है. रात में भी मैंने फ्रंट एंड रियर कैमरा दोनों से AI कलर पोर्ट्रेट शॉट्स लिए थे एंड द सैम्पल्स वर रियली गुड. आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड इम्प्रेस्ड. If you have a decent amount of light on your subject, this mode will work really well. Next is the AI scene enhancement feature. इसे मैंने indoor and outdoor setting दोनों में टेस्ट किया and although the difference in both sample feels like a pinch of salt, just a pinch but tastes better.
तो सैम्पल्स हैव स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज एंड एक्सपोजर जब आप AI सीन एनहांसमेंट फीचर ऑन कर देंगे। चलिए अब डालते हैं वीडियो सेक्शन पर नजर एंड नॉर्मल वीडियो मोड्स के अलावा यू गेट वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी, जैसे कि ड्यूअल वीडियो मोड, स्लो मोशन, AI हाईलाइट वीडियो मोड एंड द वेरी फेमस बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो मोड। सो एक काम करते हैं, लेट्स चेक देम आउट। अब वीडियो मोड्स की बात करें तो विल स्टार्ट ऑफ विद द बेस्ट रेजोल्यूशन ऑफर्ड इन द रियर कैमरा, जो कि है 4K 30 FPS। 4K 30 FPS वीडियो पर आए तो दिस इज व्हाट यू शुड गो फॉर बाय डिफॉल्ट। इट गिव्स यू स्प्लेंडेड डिटेल्स, विविड कलर्स एंड काफी अच्छी डायनामिक रेंज। ऑल्दो स्टेबिलिटी इज एन इशू हियर, बट फॉर दैट यू गेट द अल्ट्रा स्टेडी वीडियो मोड एंड यहाँ पर आप बना सकते हैं वीडियोस इन द 1080p 60 FPS रेजोल्यूशन। डिटेल्स आपको कम लगेंगी 4K 30 FPS वीडियो के मुकाबले, बट इट प्रोवाइड सम सीमलेस मूवमेंट। फ्रंट कैमरा से जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन आपको मिलेगा वो है 1080p 30 FPS। You won't get the same details and dynamic range as the 4K 30 FPS video that you got from the rear camera, but you'll get fairly good details यहाँ पर and a stable video. Next up is the portrait video with AI beautification mode and इसका purpose है to make you look pretty with a portrait background। इसे आप 720p रेजोल्यूशन में ही बना पाएंगे। Details on the subject and edge detection is average. There is slight lag when the frame moves. AI highlight video mode पर आए तो it is an extremely handy feature to have as it embellishes the video you make from the front and rear camera. How, you'll ask me, and let me show you. Check out these two videos from the rear camera simultaneously. Standard video के मुकाबले highlight video has better exposure and colors. Dynamic range भी improve होती है slightly. सिमिलरली फ्रंट कैमरा से लिए गए वीडियोस को भी हम ऑन एंड ऑफ मोड में देखते हैं और कंपेयर करेंगे तो द हाईलाइट वीडियो ऑन वीडियो फील्स मोर बैलेंस्ड विद क्लोज टू एक्चुअल कलर टेम्परेचर एंड बेटर एक्सपोजर। इस मोड का असली इफेक्ट हालांकि आप देख पाएंगे रात के समय। चेक आउट दीज टू वीडियोस साइड बाय साइड। देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस हियर। द ऑन मोड इज क्लियरली बेटर एक्सपोज्ड। दूर तक के डिटेल्स कैन बी सीन क्लियरली एंड देयर डजंट सीम टू बी एनी ग्रेन्स इन द फ्रेम। सेल्फी मोड में कंपैरेटिवली आपको कम डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट स्टिल अ वेरी प्रिटी कॉन्स्पिशियस डिफरेंस आप देख सकते हैं। ऑन मोड हैज बेटर डिफाइंड एक्सपोजर एंड कलर्स। अब आते हैं बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड पर। इट्स लाइक एन एडवांसमेंट फ्रॉम द रेगुलर बोके मोड। इस मोड में आप शॉट्स भी ले सकते हैं एंड वीडियोस भी बना सकते हैं। AI एल्गोरिदम यहाँ पर वर्क्स इन सच अ वे कि बैकग्राउंड लाइट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू ड्रीम लाइक शिमरी सा इफेक्ट जो आप देखेंगे शॉट्स में और वीडियोस में। ऑल्सो द बोके इफेक्ट इन द बैकग्राउंड गेट्स एक्सेंचुएटेड, तो ओवरऑल फील ऑफ द इमेज और द वीडियो गेट्स अ बूस्ट। पहले वीडियोस पर आए तो लेट मी शो यू समथिंग। पहले हम चेक करेंगे नॉर्मल वीडियो को टेकन फ्रॉम द रियर कैमरा एंड यू सी सम गुड डिटेल्स एंड कलर्स, राइट? नाउ चेक आउट व्हाट हैपेंस व्हेन आई टर्न द बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड ऑन। ऐसा लग रहा है क्रिसमस जैसी फील आ रही है, यू नो, आई लव इट। लेट्स डू द सेम एक्सरसाइज फ्रंट कैमरा वीडियो से। चेक आउट दिस नॉर्मल वीडियो इन डे लाइट एंड नाउ कंपेयर इट विद द बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड ऑन वीडियो। अपार्ट फ्रॉम द शिमरी बोके इफेक्ट यू ऑल्सो गेट बेटर कलर्स एंड डिटेल्स। एज डिटेक्शन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है यहाँ पर, बट अ डिसेंट सैम्पल। नाइट वीडियोस में भी हम सेम ड्रिल फॉलो करेंगे। पहले स्टैंडर्ड वीडियोस देखेंगे फ्रॉम द फ्रंट एंड रियर कैमरा एंड देन विल चेक आउट द बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड ऑन सैम्पल्स। इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है जितना डे शॉट्स में होता है क्योंकि ओवरऑल क्वालिटी इज इन परफेक्ट, बट यू सी सम कंसिडरेबल डिफरेंस। रियर वीडियो इज मच ब्राइटर, वहीं फ्रंट कैमरा वीडियो है स्लाइट लैग व्हेन द कैमरा मूव्स। अब सैम्पल्स पर आए तो चेक आउट दीज ब्यूटीफुल सैम्पल्स इन द डे लाइट सिनेरियो फ्रॉम द फ्रंट एंड रियर कैमरा ऑन एंड ऑफ मोड में। यू कैन सी परफेक्टली राउंड बोकेज इन द बैकग्राउंड एंड गुड एज डिटेक्शन। वहीं रात के समय लिमिटेड लाइटिंग एंड डार्क सराउंडिंग्स के बाद भी यू सी सम रियली कलरफुल बोके इफेक्ट इन द बैकग्राउंड। जितना ज्यादा कलरफुल बैकग्राउंड होगा उतना ही बेहतर होगा। Here details are not as good as they were in the day shot, but बहुत कम लाइट थी where I was standing and उसके हिसाब से phone did a good job overall. I love the dual video mode, especially for all the vloggers and influencers out there. You can record yourself and what's in front of you, your reactions simultaneously. Details काफी crisp है दोनों ही videos में and there is minimal lag in frame rate. After all the daylight shots and videos, it's time for the low light selfies and the night shots. Low light selfie from the normal mode काफी dark थी जो कि expected भी है। You can see काफी कम details face पर। नाइट मोड ऑन करने पर डिटेल्स थोड़ी शार्प हो जाती हैं फेस की एंड एक हल्की सी लाइट ऑन फेस एंड बैकग्राउंड इंक्रीजेस, बट इट्स नॉट इनफ।
यूजेबल सेल्फी अगर आपको रात के समय लेनी है तो आप फ्लैश ऑन करके ही ले पाएंगे। देयर इज फुल ऑन फ्लैशी लाइट ऑन द फेस। फेशियल डिटेल्स थोड़ी ब्लरी सी हैं और बेहतर हो सकती थी, बट इट्स वेरी ब्राइट एंड एवरीथिंग इज विजिबल इन द बैकग्राउंड एज वेल एज इन द फोरग्राउंड। नाइट मोड शॉट्स की बात करें तो वेल नाइट मोड इज अनदर हैंडी फीचर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द फोन्स नाइट मोड शॉट्स। आई क्लिक स्टैंडर्ड शॉट 1, 2 एंड 5x में और वाइड एंगल मोड में भी क्लिक किया। डिटेल्स इन द स्टैंडर्ड एंड वाइड एंगल शॉट्स आर डिसेंट। नाइट मोड ऑफ में you can make out the subject clearly with some details despite underexposed samples. 2x and 5x shots lack legible details. लेकिन नाइट मोड ऑन करने पर द स्टैंडर्ड एंड 2x शॉट्स लाइट अप। देयर इज अ ह्यूज विजिबल डिफरेंस व्हेन यू टर्न द नाइट मोड ऑन। आप कंपेयर करके देख सकते हैं साइड बाय साइड स्टैंडर्ड शॉट्स को और 2x जूम शॉट्स को। वाइड एंगल शॉट की अगर मैं बात करूँ नाइट मोड ऑन करने के बाद तो इट गेट्स बेटर एक्सपोज। इसे भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ सिनेरियो में, बट इट लैक्स गुड डिटेल्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेंसर ऑफ कोर्स। 5x शॉट हालांकि नाइट मोड ऑन करने के बाद इज नॉट यूजेबल। वर्डिक्ट पर आए तो OPPO Reno 6 में काफी इंटरेस्टिंग कैमरा फीचर्स दिए गए हैं, स्पेशली इन द वीडियो सेक्शन व्हिच कैन मेक योर सोशल मीडिया सुपर फन, लाइक द बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो मोड, ड्यूल व्यू वीडियो मोड एंड AI कलर पोर्ट्रेट मोड जिससे आप शॉट्स ले सकते हैं। स्टैंडर्ड शॉट एक्स्ट्रा HD शॉट्स वर गुड, नाइट मोड शॉट्स वर गुड टू, portrait shot and selfies were decent, and overall I would like to say कि a good camera performance. So guys, this was all about the OPPO Reno 6 camera. कैसे लगे आपको इसकी कैमरा स्पेसिफिकेशन? Do let me know in the comment section below. And in case you like this video, then do like it, share it, or subscribe to our channel. It's a very simple drill and you know it. Till then, this is Vandita Vashish saying goodbye.